Good afternoon, my dear kids. This is Chetan sir. So today I'm going to start lecture 7 of the second chapter, units and measurements. Now I have taken the concept called to measure large distances. So already we measured large distances by using four different units. So the first one uh, means large as well as small distances. First two were to use the smaller distances in terms of 1 Fermi, which is the size of the nucleus. Okay, 10 raised to minus 15 meter. So 10 raised to minus 15 meter is equals to 1 Fermi. Okay, so this is the diameter of what nucleus है ना, ये पहला था. The second one, it was all about the wave. So waves will be having the length. वेव का कितना लेंथ होता है, वेवलेंथ का इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम होता है ऑर्डर. ओके, सो वी यूज्ड टू सी दैट डिस्टेंसेस आल्सो. द थर्ड वन इज ऑल अबाउट 1 लाइट ईयर. मतलब ये भी तो लंबा वाला डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, वी यूज्ड टू फाइंड दैट कि सूरज से लेके अर्थ तक कितना डिस्टेंस है, या कितना 1 लाइट ईयर कितना होता है. मींस व्हेनेवर द लाइट ट्रेवल्स इनटू वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक ईयर में कितना ट्रेवल करता है, तो उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, 1 लाइट ईयर बोलते हैं. Means the speed of light with its speed 3 into 10 raised to meter 10 raised to 8 meter per second, एक साल तक कितना distance travel करता है. Up to 1 year, how much that speed of light cover the distance, that distance is called as 1 light year. Fine, that is long distance. And the fourth one is all about 1 astronomical unit. 1 astronomical unit क्या होता है, it is the distance between earth, ये आपका earth है, and sun. Sun is what? Sun is a type of star. हमको ये चीज पता है सब लोगों को. What is that? Sun and star, ये दोनों क्या है? सन क्या है? It is a type of star. एक काम करते हैं बच्चों, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है? The distance between earth and earth and sun is 1 astronomical unit. Wait. One astronomical unit, ये क्या है? The distance between sun and earth is 1 AU. इसको बोला जाता है 1 AU. Okay. Now, whatever the angle formation is taking place from the early position 1 of the earth, ये P1 क्या है? First position of the earth. Okay. This is the angle. ये theta angle है, कुछ तो angle है. We don't know that how much angle it is. Okay. Now let me tell you one thing, my dear kids. At the position 2, when the angle becomes increased, कितना theta से कुछ angle increase हुआ. In what time? In 1 second. In 1 second. So when this position 2 has means from the earth's position from position 1 to position 2, when it has changed within 1 second, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? This timing is called as 1 arc second बोला जाता है. 1 arc second. Okay. Within this 1 arc second, as well as by taking the help of what? 1 astronomical unit. Sir, 1 arc second क्या होता है? क्या 1 second से ज्यादा होता है? No, my dear kids. So this distance, ये जो गैप है ना, ये बहुत ही कम होता है. Simply to show that, वो बहुत ही आपको अच्छी तरह से दिखे, मैंने थोड़ा सा गैप ज्यादा रख दिया है. If you see this properly, you will come to know that कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, इन दोनों के बीच में ये आपको दिखाई दे, इसीलिए मैंने थोड़ा सा विजिबल रखा है. But basically it is very much small. So within 1 second, whatever the position is changing of the earth from P1 to P2, तो उस टाइमिंग को बोला जाता है 1 arc second. So 1 arc second is always equals to 1 second. ठीक है ना? तो क्या बोला जाएगा? 1 arc second is always equals to 1 second. Because यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है. तो सर्कल में क्या हो रहा है? दो पोजीशंस चेंज हो रहे हैं. तो अर्थ का पोजीशन 1 से पोजीशन 2 को चला जाना. फाइन. सो जो डिस्टेंस कवर हो रहा है P1 से P2, तो कितने टाइम में कवर हो रहा है? 1 सेकंड में. तो 1 सेकंड को मैंने बोला 1 आर्क सेकंड, तो दोनों एक ही है. ओके. नाउ हाउ मच डिस्टेंस इज देयर बिटवीन सन एंड अर्थ? अर्थ और सन के बीच में कितना डिस्टेंस है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. एम आई राइट? सो व्हेन यू मेक द प्रपोर्शन ऑफ 1 AU बाय 1 सेकंड और 1 आर्क सेकंड लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है.
that is equals to 1 parsec, 1 parasec, not parsec, parasec बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोला जाएगा इसको? 1 parasec और 1 parallactic second, है ना, दोनों एक ही हैं, parasec। Is that clear my dear kids what I'm trying to say? इसको आप 1 sec लिख लो या 1 AU divided by 1 arc sec लिख लो, दोनों एक ही हैं, both are one and same, these two, ठीक है। So this is equals to what? 1 parasec. Now you came to know this is called as 1 parasec. So this is equals to how much sir? ये distance, ये क्या है sir? What is this? This is star my dear kids, ठीक है। नियरेस्ट स्टार है ना जो सन के नजदीक में है, तो उसके और सन के बीच में ये जब 1 आर्क सेकेंड का अर्थ और इस स्टार के बीच में हुआ ना, जो पोजीशन चेंज हुआ ना अर्थ का, व्हेन वी आर रेफरिंग टू द डिफरेंट स्टार ऑफ द अर्थ, और ये जो डिस्टेंस बना ना, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज 1 पैरासेक। और ये 1 पैरासेक डिस्टेंस कितना होता है सर? सो दैट इज 3.08 into 10 to the power 16 मीटर का ऑर्डर होता है। क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आ रही है? What I'm trying to say you? Yes, yeah. So this is that 1.496 into 10 raised to 11 परिजेन, that is 1 astronomical unit, वो 1 astronomical unit का है, ठीक है। So parasec तो आपको पता चल गया क्या है, this is simple, ठीक है। So we'll move to the next point. तो हम लोग calculation of 1 parasec. Now let me ask you one thing. So ये distance किसके बीच में का है 1 parasec? The distance between what? Is it the distance between sun and different star? दो स्टार के बीच में का डिस्टेंस है जो नियरेस्ट है। Can I have your response my dear kids? फट से जल्दी से करो। Yes, not no, yes, you can see here. So this is sun, ये आपका देख लो बच्चों, try to understand, this is sun, so this is star, nearest star of the sun, and this is what? Position 1 and position 2 is the diagram of earth. earth green में लिखा, ये black color में लिखा, earth red में लिखा, these are two different position of the same earth. तो ये जो मूवमेंट कर रहा है ना, ये कितने सेकंड में, कितने टाइमिंग में मूवमेंट कर रहा है? विद इन 1 सेकंड। तो ये जो ब्लैक का एंगल है ना, दैट इज थीटा। सो दिस इज आल्सो थीटा ओनली, थीटा इज इंक्रीजिंग, बट द ऑर्डर ऑफ टाइमिंग टू चेंज द पोजीशन फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 ऑफ द अर्थ इज 1 सेकंड। तो वो 1 सेकंड को क्या बोला गया? दैट इज कॉल्ड एज 1 आर्क सेकंड, 1 आर्क सेकंड, है ना? यस। So for this 1 arc second, we have 1 astronomical unit between Earth and Sun. Earth और Sun के बीच में कितना है? 1 astronomical unit. That is equals to कितना है? 1.5 into 10 raised to 11 meter, है ना? तो 1 parasec is the distance between Sun and star. Yes. Is that clear now? Okay. So we are finding out 1 parasec कितना है ना? So 1 parasec is equals to 1 astronomical unit divided by 1 arc second. Sir 1 arc second क्या 1 second होता है? Yes my dear kids. तो 1 second को symbolically ऐसा लिखा जाता है 1 second को. So this is nothing but 1 second. ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने. So 1 second can be symbolized with what? Symbolized with ऐसे. कैसे? With the red color I will show you. ऐसे, ठीक है ना? So this is 1 second. हमको क्या फाइंड करना है अभी? 1 second फाइंड करना है. कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के लिए? यहाँ पे, ठीक है ना? तो अभी क्या करते हैं? We'll take 1 degree. So 1 degree is equals to how much? 1 degree is equals to in terms of radians pi by 180, है ना? pi by 180 वैल्यू है 1 degree is equals to, ठीक है? लेकिन 1 degree is equals to कितने मिनट्स होता है? 1 degree is equals to 60 minutes, means 60 raised to dash is called as 60 minutes. तो इसको 1 minute करके बोला जाता है. तो अगर ये ऐसे लिखेंगे तो 60 minute बोला जाएगा, है ना? So 60 minutes can be written as 60 into 1 minute. क्या हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों?
60 minute can be written as 60 into 1 minute. Fine, we are going to write like that. ठीक है. So इसको क्या करते हैं, pi by 180 as it is write करके 60 into 1 minute is equals to pi by 180, है ना. Now I will make bifurcation. यहाँ पे bifurcation बना लेते हैं कॉलम बना के. ठीक है, चलो. So listen up. Now 1 minute is equals to pi by 180 into 1 by 60. The 60 number on the left hand side, I am shifting it to the right hand side, which will become in terms of denominator. ये पहले न्यूमरेटर में था, जब इधर भेजेंगे तो 1 by 60 बन जाएगा. ठीक है. Now 1 minute is equals to how much seconds? 60 seconds, जो कि डबल में लिखा जाएगा, डबल डैश से, है ना. So 60 seconds can be written as 60 into 1 second. Is that true, my dear kids? क्या मैं 1 minute को ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं लिख सकता हूं वैसे? 60 into 1 second is equals to pi by 180 into 1 by 60. So 1 second is equals to pi by 180 into 1 by 60 into 1 by 60. Is that clear? बहुत ही सिंपल है ना. या सो लिसन अप नाउ. अभी इसको यहां पे बाइफर्केशन कर लेते हैं. ठीक, नाउ लिसन. यहां पे क्या होगा? सो वी केम टू नो द वैल्यू ऑफ व्हाट माय डियर किड्स? वैल्यू ऑफ 1 सेकेंड यहां पे है ना. अभी इसको क्या कर देते हैं हम लोग? वी आर गोइंग टू पुट दिस 1 सेकेंड वैल्यू कहां पे? यहां पे 1 आर्क सेकेंड में पुट अप कर देंगे, है ना. एंड व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? ये कितना होगा? 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, है ना. सो अभी हम क्या करेंगे? 1 पैरासेक इज इक्वल्स टू कितना डालेंगे? 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर. 1.49 है. व्हेन यू टेक एवरेज, ऑन एन एवरेज राउंड ऑफ कर दिया तो 1.5 बन जाएगा. ओके. सो 1 आर्क सेकेंड में क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे 1 सेकेंड है तो ये वाला वैल्यू लिखोगे नीचे का, है ना. तो अभी क्या होगा? इसको रब करके यू आर गोइंग टू मॉडिफाई दैट वैल्यू. पाई बाय 180 इंटू 1 by 60 into 1 by 60 को क्या करूंगा मैं? आई एम गोइंग टू राइट 3600. Can I write like that? So this is equals to 1.5 into 10 to the power 11, है ना. So 11 ये मीटर को सेपरेटली दूर रख देता हूं मैं, and divided by, so pi I'll write as it is, है ना. So divided by 18 into 10 into 1 by 36 into 100, जो कि 10 raised to 2 लिखूंगा. So 10 and 10 raised to 2 together 10 raised to 3 हो जाएगा. मैं ऊपर शिफ्ट कर दूंगा. Can I shift upwards? शिफ्ट कर सकते हैं ना. Since this 10, देखो यहाँ पे बच्चों, this 10 is raised to 1 and 10 raised to 2, both are the denominator of the denominator, है ना. होल टर्म का जो डिनोमिनेटर है ना, उसका भी डिनोमिनेटर है वो. So simply it will get shift without changing the sign of the power, है ना. इसका जो साइन है पावर का वो चेंज नहीं होगा, तो 10 raised to 3 ऊपर जाके शिफ्ट हो जाएगा. So 1.5 into 10 to the power 11 as it is. So 10 raised to 1 as well as 10 raised to 2 becomes 10 raised to 3, है ना. ऊपर जाके शिफ्ट करेगा. So divided by ये आपका पाई into 1 divided by 18 into 36, है ना. So this also will be going to shift upwards. So what it will become? It will become 1.5 into 10 to the power 14, है ना, into 18 into 36 divided by pi. Is that correct? So ये तो correct है ना. So I'm going to bifurcate with the column. Wait, I'm going to use my hand gloves. थोड़ा सा inconvenient हो रहा है लिखने के लिए.
this hand gloves is necessary while writing, or else more friction will be there while writing. Okay, so listen up, my dear kids. I'll use the black color. So, 1 parasec is equals to 18 into 36. 18 into 36, 648 होगा. 648 into 1.5 कितना होगा? Into 1.5, 972 it is, है ना? 972 into 10 to the power 14, okay, divided by pi. Pi कितना है? 22/7. Am I right, my dear kids? So कितना है? Yeah. So this 7 also going to shift upwards and get multiplied with the what? 972, है ना? So 972 into 7 कितना होगा? That is 6804 divided by 22 into 10 raised to 14, है ना? 6804 divided by 22. So this is 309.27 into 10 to the power 14. Okay, so when you are shifting this decimal point here, so what you will get? So you are going to get 3.0927 into 10 to the power, decimal point को आगे shift किया, मतलब पीछे लेके आया on the left hand side, so you are getting 10 raised to 2 outside, so 10 raised to 14 as it is, है ना? So what you will get? 3.09. आफ्टर डेसिमल पॉइंट सिर्फ 2 डिजिट्स को क्या करते हो आप लोग? सिग्निफिकेंट मानते हो. So 10 raised to 2, 10 raised to 14, 10 raised to get 16. So this is in terms of meter. So 1 parasec is equals to कितना है? 3.09 into 10 to the power 16. अरे यार थोड़ा सा अच्छा लिखेंगे, अच्छा दिखेगा. 16 meter, है ना? So is that clear, my dear kids? Oh. So this is your answer. So do everyone got this? कैसे लेके आए हम लोग? And now you came to know that कि 1 parasec कितना होता है. It's clear. Thank you. So Pari Jain and some other 2 students, they have made the homework. They sent me. उन्होंने Pari Jain, she did very clearly. मैंने जितना वो डिटेल में बोला उतना नहीं, but she did clearly. And another 2 students, I don't remember their name. Okay, listen up, my dear kids. Now the next one. So since from the starting of the college days, we are talking about physics, ठीक है ना? So we are talking about physics. So whenever we used to talk about physics, we only think about 3 physical quantities basically. हम 3 physical quantities के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं, ठीक है? कितने? 3. कितने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं? 3, है ना? सर विचार दोज, सर विचार दोज कौन से हैं वो? सो दोज आर बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज. बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज. विदाउट दोज फिजिकल क्वांटिटीज फिजिक्स कैनॉट बी इमेजिन्ड. तो फिजिक्स का इमेजिनेशन हम लोग कर ही नहीं सकते, है ना? सो दैट इज लेंथ, है ना, मास एंड टाइम.
These are the three basic physical quantities. With these three only the whole physics is standing. क्या आपको समझ में आ रहा है बच्चों? With these three physical quantities only the whole physics is standing. तो ये तीनों बेसिक्स हैं, उसके बेस हैं फिजिक्स के. So what we are going to discuss, sir? हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे सर? My dear kids, we are going to discuss the ranges. इन तीनों के ranges को हम डिस्कस करेंगे throughout physics. If you go for the high school level physics, up to degree doctorate level physics, up to research level physics, we are simply studying the ranges. ठीक है? ये तीनों बेसिक हैं. इसके रिलेटेड बहुत सारे डिराइव्ड है ना? इसे छोड़ के और 4 फंडामेंटल हैं, मतलब बेसिकली 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, बट द बेसिक्स ज्यादा से ज्यादा फिजिक्स में जो यूज होते हैं ओनली दोज आर लेंथ, मास एंड टाइम. तो इसके डिराइव्ड बहुत ज्यादा हैं. सो व्हाट वी आर गोइंग टू सी हियर इज रेंजेस. हम लोग क्या देखने वाले हैं? रेंजेस ऑफ लेंथ और रेंज ऑफ लेंथ. सिंपली रेंज ऑफ लेंथ. ये रेंज ऑफ लेंथ क्या है सर? What are these? So these are, these will explain all about atomic phenomena. Atomic phenomena to astronomical phenomena. Okay. So what I'm trying to say you, my dear kids, ये जो रेंज ऑफ लेंथ है ना, हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं इन फिजिक्स? वी यूज्ड टू स्टडी ऑल अबाउट, माय डियर किड्स, एटॉमिक फिनोमिना टू एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना. इज दैट क्लियर? तो एटॉमिक फिनोमिना में क्या होता है? सर व्हाट वी आर हैविंग इनटू एटॉमिक फिनोमिना सर, एंड व्हाट वी आर हैविंग इनटू एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना. बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी द रेंजेस ऑफ दीज टू, है ना? इन दोनों के रेंजेस इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ लेंथ पैरामीटर. किस चीज के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं? either atomic phenomena or astronomical phenomena. We are finding out, or we are seeing out what? Ranges of the lengths. We are seeing out the parameter of the these phenomena. ठीक है ना? वो parameter क्या है? Length है. So the order of the length into atomic phenomena is 10 raised to minus 15 meter. ठीक है? And into the astronomical phenomena, the order of the length will be 10 raised to 26 meter. Okay. But in what terms? What we are trying to refer into the atomic phenomena means whatever the activities are going on into the atoms, it is around the nucleus or inside the nucleus. Inside the nucleus उतना ज़्यादा visible नहीं होता है. Fine. But around the nucleus we can see the activities of the subatomic particles as well as the vibrations of atoms. But with what terms? With the help of what? With the help of electron spectrograph. Try to understand my point. This is the instrument. This is the instrument through which you are going to see the activities inside the atom. तो वो जो order मिलता है ना, order means size, length, the dimension of what? Atoms. हम कहाँ तक देख सकते हैं? Okay. But directly you cannot see that. By seeing the graph, whatever the electron spectrograph is producing, through that you used to analyze the data. उससे क्या करते हो? Analyze करते हो data को. Data analyze करके you are going to show or you are going to trace the path. ठीक है? By that data से आप एक path बनाते हो कि subatomic particles as well as the activities of the atoms, you can simply imagine that. तो उसी को आप format of diagram करके डालते हो. तो diagram कैसे बनाते हो atoms का? By this process. Electron spectrograph से आप instrument से graph बनाते हो, then analyze data, trace the path. जो imagination मिलता है उससे आप diagram बनाते हो. किसका? Atomic activities का, है ना? So the order क्या है? What is this showing? This is showing the diameter. Diameter of what? Diameter of nucleus present
inside the atom, है ना, आपका एटम है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। आई विल शो यू विद अ डायग्राम। दिस इज योर एटम, ओके, दिस इज योर एटम एंड दिस इज योर न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस है। नाउ द साइज, द लेंथ ऑफ द डायमीटर, वो कितना होता है सर, दैट इज 10⁻⁻15 मीटर। ये आपका डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस, ये जो रेड कलर में है ना, इसी को न्यूक्लियस बोलते हैं। सो वी कैन सी अप टू हियर विद द हेल्प ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोग्राफ। बट विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, okay, with the help of telescope we can see up to the observable universe। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स मतलब जो आंखों को दिखाई देता है, आप देख सकते हो, वो कितना होता है, 10⁻26 मीटर। फाइन, 10⁻26 मीटर जो है ना, ये क्या है, से फॉर एग्जांपल दिस इज योर यूनिवर्स, और आपका कुछ ऐसा ही है यूनिवर्स, ऐसा मान के चलो, आपको दिखाई दे रहा है ऐसे, ठीक है। आई एम नॉट ड्रॉइंग पर्टिकुलरली, यू नो, पर्टिकुलरली आई एम नॉट ड्रॉइंग, क्योंकि सन आप रेफरेंस यहाँ पे रख रहे हो, यू आर कीपिंग योर सन हियर, ओके, एंड दिस इज ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। आपको ये दिख रहा है कि यूनिवर्स इतना है, एंड यू आर नॉट एबल टू सी द अदर थिंग्स, आपको आगे की चीजें नहीं दिखाई दे रही है। नाउ आप कहां कहां से देख रहे हो, सन की तरफ से, सन से यहाँ पर, यहाँ तक देख रहे हो, एंड फ्रॉम सन अगेन यू आर सीइंग अप टू हियर, फ्रॉम सन अगेन यू आर सीइंग अप टू हियर, ठीक है, फ्रॉम अगेन सन यू आर, अरे यार, यू आर सीइंग अप टू हियर, ऐसे देख रहे हो, और आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे भी देख रहे हो, एंड अगेन यू आर सीइंग ऐसे। नाउ व्हेन यू टेक द एवरेज ऑफ 3 रीडिंग्स, 3 रीडिंग्स का जब एवरेज निकालते हो, यू विल गेट द लेंथ, लेंथ ऑफ व्हाट, लेंथ ऑफ रेडियस, ठीक है। लेंथ ऑफ रेडियस कैसे निकाल रहे हैं सर, एवरेज बना के, ठीक है। वो ऑर्डर क्या होगा सर, द ऑर्डर इज 10⁻26 मीटर। So this is what, this is the radius, radius of what, universe, observable universe. And by what means we are seeing this, by telescope we are trying to see that. What is the order of that sir, 10⁻26 meter. So is that okay my dear kids, here we are finding out the range of the length. Sir, you are talking about the atoms, आपने बोला कि atoms हैं, तो पिछले वाले जो क्लासेस थे हमने सुना था कि एटम्स का जो साइज होता है, डायमीटर, यू वर सेइंग दैट इट वाज 10⁻⁻12 मीटर, एंड नाउ यू आर सेइंग दैट न्यूक्लियस का जो डायमीटर है, ठीक है, 10⁻⁻15 मीटर। तो मॉलिक्यूल का क्या हो सकता है सर, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल्स का, लार्ज मॉलिक्यूल का जो डायमीटर है, इट विल बी समवेयर अराउंड 10⁻⁻9 मीटर है, ओके। सो हाउ यू आर गोइंग टू सी दैट सर, आप कैसे ये चीजों को वेरीफाई कर सकते हो। माय डियर किड्स, लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, सॉरी थ्योरेटिकली नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली आप इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोग्राफ से देख सकते हो यहाँ तक, ठीक है। दिस ऑल्सो यू कैन सी, दिस ऑल्सो यू कैन सी, बट बाय व्हाट मींस, बाय पुटिंग द ग्राफ, एनालाइजिंग डाटा, आप एक इमेजिनेशन से डायग्राम बनाते हो, ठीक है, पहले इक्वेशन बनाते हो, बाद में डायग्राम बनाते हो, ठीक। सो बाय दैट मींस यू आर पुटिंग द डायग्राम ऑफ एटम, ऐसा हो सकता है। नाउ लार्ज मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल का भी आप स्पेक्ट्रोग्राफी यूज करोगे सर, राइट। सो 10⁻⁻9 इज द ऑर्डर ऑफ नैनोमीटर, ओके, सो यू आर सीइंग लाइक दैट ओनली, यस। सो कोई ऐसा इक्वेशन है सर, if any theory is there, by theory or by calculation we can find the order of the molecule या atom या nucleus, okay, atoms and nucleus till now which is not verified properly, but of the molecule we can do that. molecule का हम यहां तक देख सकते हैं, कहां तक, नैनोमीटर तक, by doing theory, by doing calculation,
We can make a verification of that. Sir, how it is possible? Tell us. हमको कुछ बताइए. Now I will tell you, my dear kids. See here. I'll take a matter. मैं matter लूंगा, है ना? So I'm going to take a matter into space. कहाँ पे ले रहा हूँ? Into space, which is 3-dimensional. 3D means what? 3-dimensional. 3-dimensional means it is carrying 3 coordinates x, y, z, है ना? तो x, y, z, when we are connecting the coordinates with the parameter called length, इससे हम जोड़ेंगे तो मिलेगा क्या, बताओ मुझे. एक आप x के along लोगे तो वो क्या मिलेगा? x के along लेने के बाद लेंथ मिलेगा, एंड y के along लेने के बाद इट इज सिंपली हाइट, है ना? सो z के along इट इज breadth. Is that clear, my dear kids? Breadth नहीं है तो सिंपली आप width बोल लो. It is your choice. जो भी है आप जैसे भी ले रहे हो उसको, ठीक है? So one thing, wait. Now listen, my dear kids. Within 1.5 minutes this link will be going to cut. ठीक है? तो ये लिंक कट होने वाला है, आपको फिर से रिजॉइन करना है सेम लिंक से, ठीक है? So I will start. Now listen up, my dear kids. It's the matter, ठीक है? आई एम चूजिंग द मैटर, और मैं मैटर से क्या ले रहा हूं? सिंपली आई एम ट्राइंग टू मेक अ 3D पिक्चर ऑफ दिस. मैं इसका 3D पिक्चर बना रहा हूं, ठीक? सो दिस इज मैटर. फाइन. if you see it, this is x axis and this is y axis and this is z axis, ठीक है? आपको क्या पता चल रहा है? Here is the length, here is the height and here is the breadth. So within 1 minute this link will be going to cut. इसको थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? Okay, so this is length, this is breadth and this is height, है ना? तो if you see this, यहां से लेके यहां तक, from here to here, if you see this, you'll come to know that this is not only height, the thickness of the block also. इसको thickness भी बोला जाएगा. तो can we write height is equals to thickness? Are you getting my point, my dear kids? Can we write height equals to thickness? If it is, listen up, my dear kids. We are finding out the diameter of the molecule. If this is molecule, ये आपका molecule है, ठीक है ना? So if you're finding out the height, ये आपका height है, ये आपका thickness है, जो भी कह लो, thickness, height, size. If you are finding out these 3 things, कौन सा? एक आपका thickness कह लो, है ना? या height कह लो या size कह लो. तीनों क्या इंडिकेट कर रहे हैं? 3 of the things are indicating diameter. So you are finding out diameter. अगर आपने diameter find कर लिया तो आपने सारा चीज फाइंड कर लिया. थिकनेस, हाइट, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल. द साइज ऑफ द कह लो या हाइट कह लो या थिकनेस कह लो, कितना है ऑर्डर? 10⁻⁹. सो वी नीड टू फाइंड दैट वन. हमको ये चीज फाइंड करना है. तो अभी हम क्या करेंगे? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, सी हियर. यहाँ पे मैं एक चीज लेता हूँ. क्या लेता हूँ? आई एम गोइंग टू फिल. मैं क्या फिल करूंगा? यहाँ पे अंदर एक चीज फिल करूंगा. किससे? I'm going to put chemical inside this box. ये वाला ब्लॉक है ना, ये जो बॉक्स है ना, इसके अंदर मैं केमिकल फुल कर दूंगा. कहां तक? यहां तक भर के, ठीक है? भर दिया मैंने केमिकल. कौन सा वाला केमिकल ले लिया? फॉर एग्जाम्पल ओलिक एसिड लिया मैंने, ठीक है? ओलिक एसिड लिया. सर ओलिक एसिड ही क्यों ले रहे हो? दूसरा क्यों नहीं ले रहे हो? आई एम टेकिंग जस्ट एज एन एग्जाम्पल, ठीक है? सो ओलिक एसिड इसलिए ले रहा हूं, आई एम टेकिंग दिस एज केमिकल 1, ठीक है? And the chemical which is reacting with the chemical 2 is alcohol, ठीक है? So these two will get properly mixed. ये दोनों properly mix होते हैं. तो mix होने के बाद क्या मिलेगा मुझे? एक 3D space वाला matter मिलेगा, liquid matter. Into this box, what is there? Liquid matter is present. इसमें क्या है? Liquid matter present है. So if liquid matter is present, what we are going to do? हम क्या कर सकते हैं सर?
Now listen up, my dear kids. uh, Listen up. So I will share a different screen, white screen. That will be better. So listen up now. So when you take a box of 3 dimensional, it is carrying 3 dimensional space, है ना? तो मैंने ऐसे बॉक्स लिया, ठीक है? Now what I'm going to do, simply this box I'm going to fill up with the 2 chemicals. एक आपका है ओलिक एसिड, दूसरा है आपका अल्कोहल, ठीक है ना? तो मैंने क्या किया, इसको अपना लेंथ बना लिया, ठीक है? क्या बना लिया मैंने? I made it as a length and this one is height, thickness, size, जो भी कह लो, and this one has breadth or width, ठीक? चलो, so length, height, breadth. Okay, so if you take this one, कौन सा वाला? If you take this one, ये क्या बनेगा बताओ मुझे? Length into breadth. Length into breadth क्या बनेगा? Can I call it as area? क्या मैं area बोल सकता हूँ? Area of what? Area of mixed solution. Mixed solution. Mixed solution of what? C1 plus C2. Chemical 1 and chemical 2. C1 क्या है? C1 is oleic acid, है ना? And C2 क्या है? Alcohol. तो दोनों को आप मिक्सचर बना दिया, तो दोनों केमिकल क्या है? कंपाउंड है इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? मिक्स्ड सॉल्यूशन है. सो ये जो मैंने मार्क किया है, व्हाट इज दिस? दिस इज द एरिया ऑफ व्हाट? सॉल्यूशन, केमिकल सॉल्यूशन, मिक्स्ड सॉल्यूशन. तो इस मिक्स्ड सॉल्यूशन को मैं एक्स सॉल्यूशन करके नाम रखूंगा. आई विल कॉल दिस एज व्हाट? आई विल कॉल दिस एज एक्स सॉल्यूशन. मैं क्या बोलूंगा इसको? आई विल कॉल दिस एज एक्स सॉल्यूशन, है ना? तो ये जो एक्स सॉल्यूशन है ना, एक्स सॉल्यूशन इज कैरिंग एट दिस एरिया. Okay, L into B is equals to area of the X solution. Yeah. Now, when it is mixed up with the height, then it will become volume of what? X solution. इस X solution का क्या बनेगा? ये वॉल्यूम बनेगा. सिंपल है ना? क्या मैं बात जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही है बच्चों? ओके, सो वॉल्यूम इट इज. नाउ ये जो हाइट क्या है? हाइट इज नथिंग बट थिकनेस. थिकनेस क्या है? डायमीटर. डायमीटर क्या है? साइज, ठीक है? तो इसको अलग कर लेते हैं हम लोग. वी आर गोइंग टू सेपरेट दिस. ओके, वी आर गोइंग टू सेपरेट दिस एंड वी आर गोइंग टू शिफ्ट द एरिया डाउनवर्ड्स, है ना? तो इसके लिए क्या करते हैं? साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड. कैसे डिफाइन किया जा सकता है? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया, है ना? सो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया. तो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज नथिंग बट लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट. वी ऑल नो दैट. एंड व्हाट इज एरिया? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो अगर मैंने इसको निकाल लिया तो मिलेगा क्या? हाइट मिलेगा, है ना? सो व्हाट वी आर फाइंडिंग आउट? द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल. इफ यू फाइंड आउट द हाइट और थिकनेस और डायमीटर, क्या मिला आपको? आपको मिला what you found? You came to know that thickness, diameter or height is equals to size of the molecule. ये बहुत ही सिंपल है ना बच्चों? So is that clear? So can we find that? हम लोग फाइंड करें, आगे बढ़ें? Yes. Now listen. So now you came to know मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको. Wait. So when you cancel that, आपको क्या मिलेगा बताओ? फट से बताओ जल्दी से. आपको मिलेगा, we are going to get the सिंगल लेयर. आपको एक सिंगल लेयर मिलेगा, ठीक है? तो सिंगल लेयर ऑफ व्हाट? दिस इज सिंगल लेयर ऑफ, यू आर गेटिंग द हाइट. आपको एक हाइट मिलेगा. दिस सिंगल लेयर ऑफ व्हाट? मॉलिक्यूल्स, मोनो लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना? सो इस मोनो लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स में क्या मिला आपको? यू गॉट द हाइट, यू गॉट द हाइट, you got the thickness, you got the diameter, that is size. Size of the molecule मिल गया.
Is that clear? Is that clear? Yeah. Now, is my voice is clear to everyone? Audible? Yeah. So here we are finding out what, इसी को हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, डिटरमाइन करने वाले हैं. So determination of very small distances, बहुत ही छोटे distances का हम क्या करने वाले हैं, डिटरमाइन करने वाले हैं. And the order will be size of the molecular size. Molecular size. ठीक है, चलो मार्कआउट कर लेते हैं इसको, डैश लाइन डाल के नीचे. चलो, so determination of a very small distance. तो पहले we are adopting a simple method. So we are going to write some small explanation, a simple method for estimating the oleic acid molecular size is given below. Therefore ओलिक एसिड बाय नेचर कैसा रहता है? ओलिक एसिड इज अ सोपी लिक्विड ऑफ लार्ज मॉलिक्यूलर साइज, मतलब छोटे भी होते हैं, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised to minus, अरे यार 10 raised to minus प्रॉपरली लिखना चाहिए, पेन बहुत फिसलता है. To find the size of the molecule, of oleic acid. ठीक है, we form हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, as I said you, as I explained you, कि यार हमने वॉल्यूम में से एरिया को हटा दिया, बस क्या बच गया हमारे पास हाइट बच गया, थिकनेस बच गया, डायमीटर बच गया, जिससे क्या मिला, मोनोलेयर मिल गया. मोनोलेयर ऑफ व्हाट? ऑफ ओलिक एसिड मिक्स्ड सॉल्यूशन विद द अल्कोहल, है ना. ओलिक एसिड और अल्कोहल का मिक्स्ड सॉल्यूशन मिल गया, जिससे हमें मोनोलेयर मिल गया. तो मोनोलेयर से हमें क्या मिलेगा, लेयर का थिकनेस मिलेगा. और अगर लेयर मोनोलेयर है तो सिंपली इट इज द डायमीटर साइज ऑफ those molecules. So we are finding out the molecular size. So we form monomolecular layer that is single molecule सिंगल मॉलिक्यूलर लेयर. ठीक है, चलो इतना हो गया. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. हम लोग क्या करने वाले, मैंने ऑलरेडी आपको डायग्राम से बता दिया था चीजों को. नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ कंसिडरेशन. हम लोग कंसिडरेशन करने वाले हैं, क्या क्या चीज लेने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेक द छोटा वाला यूनिट जो हमें क्या कहते हैं, आंखों को दिखाई देता है, जो सिंपली हम simply we are familiar with that unit. So centimeter, this is very much we are familiar कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब अगर 1 सेंटीमीटर इतना है तो इतना सा 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड is taken with 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल. ठीक है, आप किस चीज में भी ले लो ये चीज, मतलब दो चीजें हैं यहाँ पे.
and the size of those chemicals we have taken. One is 1 centimeter cube of oleic acid, and the one is 20 centimeter cube of alcohol. So when you mix these two things, आप जब mix करोगे 1 centimeter cube of oleic acid plus 20 centimeter cube of alcohol. So when you are taking the concentrated form of the oleic acid, that is in terms of 1 centimeter cube, वो concentrated रहता है. But when you mix this with the alcohol, so this will form solution. इसका एक solution बनेगा. And the order of the concentration of that solution is कितना रहेगा? वो आपका 1/20 रहेगा. 1/20 centimeter cube of what? The solution. तो इसका जो है ना एक dilution, you can call it as diluted solution, उसका order क्या रहेगा? 1/20 centimeter cube इतना रहेगा. Is that clear? Now out of this ये जो 1/20 centimeter cube का जो भी आपको size मिलेगा solution का, again you have to take what? This is the diluted solution. Okay, so out of this solution ये 1/20 का क्या कहते हैं, concentration वाला क्या कहते हैं, the concentrated format of this solution is 1/20. तो इसमें से आपको क्या करना है? Again you have to take the 1 centimeter cube of this solution. ये solution को मैं बोलूंगा I'm going to call this as Z solution. ठीक है, इसको मैं Z solution बोलूंगा, diluted solution. So when you take the 1 centimeter cube of Z solution, ठीक है, इसको लेके क्या करेंगे? Again I am going to mix up with the 20 centimeter cube of alcohol. Are you getting my point? So when you mix up this, आपको मिलेगा क्या? You are going to get 1/20 into 20 centimeter cube of what? Diluted solution. Again diluted. आपने फिर से dilute किया, किससे? पानी से नहीं, अल्कोहल से. किससे किया आपने? Diluted solution. Now this solution I'm going to call it as X solution. ये वाले solution को मैं बोलूंगा X solution. इसको मैं क्या बोलूंगा? X solution. ठीक है, the concentrated of this solution is 1/20 into 20 centimeter cube. ठीक है ना? तो अभी इसको क्या करेंगे हम लोग? We are going to take the concentration for what? ये concentration किसके लिए रहेगा? To the particularly volume of 1 drop. तो ये concentration volume of 1 drop के लिए कितना रहेगा वो? That is 1/20 into 20 volume. क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? Volume of 1 drop of that what? X solution. X solution का कितना आ रहा है? So X solution basically this is a mixture of what? Oleic acid as well as alcohol. तो कितना आ रहा है? 1/20 into 20 V है ना? For N drops के लिए कितना आएगा बताओ फट से, जल्दी से. For N drops, so that is equals to 1/20 into 20 NV. This is the volume of what? For N drops of X solution. Is that clear my dear kids? Any confusion over this? क्या इसके बारे में आपको कोई confusion हो रहा है? Can I have your response? फट से. No confusion. Okay, so listen up my dear kids. We are going to take one thing. एक चीज यहां पे हमको लेना है, no doubt. Listen up. So no confusion. Okay, so I'm going to split this. इसको एक अलग तरीके से लिखूंगा मैं. 2 2s into 10 raised to 2. Okay, NV. This will be calculated. Volume will be calculated in terms of क्या? Centimeter cube. Fine. क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं ना? Yes. So listen up my dear kids. This is 1/4. Okay, and NV. So centimeter cube
इंटू 10⁻², ठीक है ना? Okay, listen. Now 1/4 as it is into NV. So this is आपका 10⁻², meter cube. Because when you write centimeter, this is equals to what? 10⁻² meter. अभी इसको क्या कर रहे हो आप? raised to 1 लिख दिया. Okay. So this is also raised to 1. So when you are writing centimeter cube, it means that it is not like this. ये नहीं, ऐसे नहीं. Centimeter cube means like this you are writing. ठीक है? So 10⁻² meter ये आपका क्यूब है ना? ऐसे है ना? तो अभी इसको कैसे लिखोगे आप? 10⁻² क्यूब मीटर क्यूब, ठीक है ना? So what it will be? 10⁻⁻8 मीटर क्यूब. Am I right, my dear kids? ठीक है, चलो. तो अभी इसको क्या करते हैं? I'm going to split here and write as well. So 1/4 I'll keep as it is into NV. So 10⁻², यहाँ पे 10⁻² मुझे लिखना है आगे as it is. So this is 10⁻⁻8 मीटर क्यूब इंटू 10⁻², ठीक है? तो इतना लिख दिया मैंने. फाइन. So I will bifurcate here, column बनाऊंगा and I'll rub this the whole thing. So listen up. So is equals to 1/4 into NV into 10⁻⁻8. I'll keep as it is. ये 10⁻² क्या बनाता है? This is सेंटी, this is सेंटी, है ना? तो सेंटी को मैं आगे ले लेता हूं एंड मीटर क्यूब, नॉट मीटर क्यूब. इस मीटर क्यूब को एक काम करते हैं, सेंटी को अभी नहीं बनाते हैं. वी आर गोइंग टू डू वन थिंग. वेट, लिसन. सो इफ दिस इज 10⁻², मैं इसको आगे ले लेता हूं, ठीक है? एंड दिस इज मीटर क्यूब. इफ दिस इज मीटर क्यूब, इतना ही रख दिया मैंने. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एक्स सॉल्यूशन, है ना? वॉल्यूम ऑफ एक्स सॉल्यूशन फॉर व्हाट? फॉर n ड्रॉप्स, है ना? फॉर n ड्रॉप्स. Now what we are going to do here is, listen up my dear kids. हम क्या करेंगे यहाँ पे? इस वॉल्यूम को मैं क्या कर लूंगा? थिकनेस इनटू एरिया बना लूंगा, है ना? थिकनेस इनटू एरिया. सो इज इक्वल्स टू 1/4 का NV/4 लिखूंगा, ठीक है? इंटू 10⁻⁻8 एज इट इज, इंटू 10⁻², एज इट इज, मीटर क्यूब. अगर यहाँ पे मीटर में मैंने कन्वर्जन कर लिया है, मीटर क्यूब, सो मैं अगर एरिया को इधर भेज रहा हूं, इफ आई एम सेंडिंग दैट एरिया ऑन दिस साइड, ठीक है, इनटू एरिया, सो 10⁻⁻8 as it is, 10⁻² as it is. So the unit of area will be in terms of meter cube only, क्योंकि यहाँ पे मीटर क्यूब में मैंने कन्वर्जन कर लिया. अगर राइट हैंड साइड में जो यूनिट रहेगा वही लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा. तो एरिया का किसमें मेजरमेंट करोगे? नॉट इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, इन टर्म्स ऑफ मीटर, क्योंकि ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया मैंने. सो NV divided by 4 into 10⁻⁸ into 10⁻². So मीटर क्यूब. सो एरिया का क्या रहेगा बताओ मुझे? एरिया का इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर, है ना? तो अभी क्या करेंगे हम? इसको यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, तो बचा क्या? यहाँ पे सिर्फ मीटर बच गया, है ना? नाउ दिस इज 4, ये 4 है ना आपका. इस 4 को क्या करूंगा मैं? आई एम गोइंग टू राइट NV डिवाइडेड बाय 0.4, मतलब डेसिमल पॉइंट यहाँ पे मैं इसको आगे शिफ्ट कर दूंगा. तो अगर यहाँ पे आगे शिफ्ट किया, व्हाट विल गेट? 10 एंड 10⁻⁻8 as it is. सो 10⁻², का सेंटी बना लूंगा, ये मीटर के साथ लिख दूंगा, सेंटीमीटर. Okay, so this is 10⁻1. So when I'm shifting this 10⁻1 to the numerator, so this will become 10⁻1. 10⁻1, 10⁻8 क्या होगा? I'll show you here. मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा. See here. Now
So the volume of x solution, ठीक है, का हमने क्या बना लिया, थिकनेस बना लिया. सो आई कैन राइट दैट इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम, मैं वॉल्यूम की बजाय क्या लिख सकता हूं, थिकनेस ऑफ द एक्स सोल्यूशन, है ना, टी. सो इज इक्वल्स टू एन वी, है ना, डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर. सो अभी मैं क्या करूंगा, इसको इसको ऊपर सेंड करूंगा. ऊपर सेंड करने के बाद व्हाट विल गेट एन वी इंटू 10 रेज टू माइनस 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर. सो 0.4 को आई एम गोइंग टू राइट 4 बाय 10. ओके, सो 10 बाय 4, ठीक, इंटू एनवी. सो 10 बाय 4 इज द कांस्टेंट फैक्टर, तो वो ज्यादा मैटर नहीं करेगा. नाउ इंटू 10 रेज टू माइनस 1, 10 रेज टू माइनस 8, क्या बन रहा है यहाँ पे, सो 10 रेज टू माइनस 9 सेंटीमीटर. सो दिस इज व्हाट यू नो, दिस इज कांस्टेंट फैक्टर माय डियर किड्स. ये आपका क्या रहेगा, ये आपका कांस्टेंट फैक्टर रहेगा. तो the order of the length size of the molecule, ये x solution का size of the molecule क्या है, बताओ, फट से बताओ, you only tell. क्विक से, जल्दी से, tell me, फट से. the order is 10 raised to minus 9 centimeter. is that clear my dear kids? this is the answer, ये आपका आंसर है. so क्या हमने डिटरमाइन कर लिया बच्चों? okay, to listen this my class very patiently, thank you my dear kids. So I will close this class, and if you felt happy with this class, you can comment at my YouTube channel. Fine, इसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप को. Fine, thanks for watching my dear kids. जय हिंद.